आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। हैदराबाद में भारत समिट का एहतमाम, कांग्रेस कायद राहुल गांधी की शिरकत। इतवार को वरंगल में मुनक्किद होने वाले बीआरएस की सिल्वर जुबली के इंतजामात मुकम्मल, एमएलसी के कविता ने कारों के काफिले को दिखाई झंडी। मजलिस अराकीन असम्बली मुतालिका हल्कों में अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ। महेश्वरम डिवीजन में सीसीटीवी प्रोजेक्ट का आगाज, कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा ने किया इफ्तिताह। नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर सियासी खबरों पर नजर डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। अपोजिशन लीडर लोकसभा राहुल गांधी ने HICC में समिट 2025 से खिताब करते हुए बताया कि समाज में सियासी तब्दीलियां भी बड़े पैमाने पर रूनुमा हो रही हैं। मॉडर्न मीडिया और सोशल मीडिया का ख्याल है कि ख़दीम सियासत मौजूदा दौर में रूबे अमल नहीं लाई जा सकती। उन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को रियासत तेलंगाना को सनती हब में तब्दील करने पर मुबारकबाद पेश करते हुए बताया कि कांग्रेस ने समिट 2025 सिर्फ समाजी इंसाफ ही के लिए नहीं बल्कि माहौलियाती तब्दीलियों से मुताल्लिक़ शऊर बेदार करने के लिए मुनक़्क़िद की है। इस मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के अलावा रियासती वज़रा और 100 ममालिक के मंदूबीन भी मौजूद थे। As part of India Indiramma Illu scheme, in first year we have given 22,000 crore to 4,50,000 families to build their own houses. Today, women have free public transport in RTC buses across the state. So far in 15 months, we have spent 5,000 crore on the free bus scheme for women. Women look after entire family. So we ensure best free rice through rations. Free domestic electricity and rupees 500 per gas cylinder. For our government, education and healthcare are top priorities. The Rajiv Arogyasri is one of the best universal healthcare support schemes, where treatment of up to 10 lakh is paid by government. We give financial assistance to citizens for healthcare through CM Relief Fund. In 1 year, we have given 1,000 crores so far. Water is our lifeline of civilization. We are regenerating River Musi, 55 kilometers long, cleaning a polluted river and bringing it back to life. We are doing it for the future to protect nature, regenerate water, ensure drinking water for the city, and protect people from pollution. We have studied river and waterfront development in many cities, including River Hudson in New York, Thames in London, Sumida in Tokyo. Musi will become biggest attraction of our city in the future and create thousands of jobs. Infrastructure is crucial to fight poverty and create wealth for all. We are undertaking many infra projects to make Hyderabad a top global city. We are building future city, a 30,000-acre world-class city, a regional ring road of 370 kilometers long, and expanding our metro railway. You must have visited Charminar, Golconda Fort, Makkah Masjid, Hussain Sagar Lake, and Buddha statue. In times ahead, we will add many modern marvels. We are combining and balancing between needs for investments, jobs creation, economic growth, and welfare and environment for good governance. Our approach is simple: increase government revenue to share with the poor people. We are transparent and proactive in reforms. For example, we are setting up a gig and app workers welfare policy.
We have shared draft policy in public for feedback and suggestions. And I essentially learned two things from that walk. Our opposition across the world has a monopoly on anger, fear, and hatred. And there's no way that we are ever going to be able to compete with them on anger, fear, and hatred. They are going to outdo us, outmaneuver us, and beat us every single time when it comes to fear, anger, and hatred. So the question is, where and how do we operate? Where are the spaces where we have the advantage? Where are the spaces from which we can build a counter narrative? So the walk started in Kanyakumari, and slowly as it progressed, more and more people started to join this walk. And within 10-15 days, walk would start at 6 in the morning, and we would have thousands and thousands and thousands of people walking with us, pushing us, people trying to come in. And it was something to see. My job was walking and listening to people. And the one rule we had was that anybody, regardless of who he is, who she is, should be able to come to the center. Our beloved leader, Sri Rahul Gandhi ji, leader of opposition Lok Sabha, Honorable Chief Minister Sri Revanth Reddy Garu, my cabinet colleagues, senior leaders from AICC, अपोजिशन लीडर लोकसभा राहुल गांधी का शमशाबाद बैन अवी एयरपोर्ट पहुंचने पर वालेहाना खैर मकदम किया गया और उनका इस्तकबाल करने वाली अहम शख्सियतों में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का, रियासती वज़रा, सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौड़ के अलावा दीगर भी मौजूद थे। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने राहुल गांधी को मेमोरेंडम हवाले किया। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि अगर कालेश्वरम आबपाशी प्रोजेक्ट की सीबीआई के जरिए तहकीकात करवाई जाए तो केसीआर का पूरा ख़ानदान जेल के अंदर होगा। डी अरविंद ने केसीआर और केटीआर से दरियाफ्त किया कि पार्टी की सिल्वर जुबली तकरीब के लिए जो 100 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं वो कहाँ से आए, इसकी वजाहत करें। उन्होंने केसीआर पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो सीमा आंध्रा के कायदीन से आज से ही नहीं बल्कि 2004 के इंतखाबात से दोस्ती कायम रखे हुए हैं। वज़ीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कांग्रेस हुकूमत वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में सीताराम आबपाशी प्रोजेक्ट के ज़रिए ज़िले खम्मम और दीगर अजला के अराज़ियात को सैराब करने के इक़दाम कर रही है। उन्होंने बताया कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट के तामीरी काम राजशेखर रेड्डी के दौर में शुरू किए गए थे, जिसकी लागत 45,000 करोड़ रुपये रखी गई थी, लेकिन केसीआर ने इस प्रोजेक्ट को नए डिज़ाइन के नाम पर शुरू किया, जिसकी लागत को 1 लाख करोड़ करते हुए इसमें धांधलियां की गई। बीआरएस रुकन असम्बली हरीश राव ने बताया कि 27 अप्रैल बरोज़ इतवार को पार्टी की सिल्वर जुबली तकरीब बड़े पैमाने पर मुनक़्क़िद ज़रूर की जा रही है, लेकिन इस तकरीब में करोड़ों रुपये खर्च करने के इल्ज़ाम बेबुनियाद है। हरीश राव ने बताया कि बीआरएस पार्टी किसानों, अक़लियतों और पसमानदा तबक़ात के साथ इंसाफ करने वाली पार्टी है। हरीश राव ने मज़ीद कहा कि रैतु भरोसा, रैतु बीमा के साथ साथ लाखों एकड़ अराज़ी को सैराब करने के लिए और SC, ST, BC और माइनॉरिटी तलबा को मुफ्त तालीम के साथ साथ क़याम व ताम की सहूलत और बैरूनी मालिक तालीम हासिल करने के लिए 20 लाख रुपये फराहम करने वाली पार्टी चाहे इख्तिदार में आए या ना आए, लेकिन आवाम की खिदमत करना हमारा फ़र्ज़ है।
ఖచ్చితంగా అది అమలు చేసినటువంటి చరిత్ర శాసనసభకు ఉంటుంది. కానీ శాసనసభలో చెప్పిన మాట నడవదు, దేవుళ్ళ మీద ఒట్టుపెట్టి చెప్పిన మాట అమలు కాదు, మొత్తంగా కూడా గందరగోళమైంది. అందుకే ఇవాళ రాష్ట్రంలో ఉండే రైతులు కేసీఆర్ వైపు చూస్తున్నారు. రైతు రాజ్యం అంటే అది బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వమే నిజమైన రైతు రాజ్యం ఇచ్చింది. ఈ రాష్ట్రానికే కాదు దేశానికే మార్గదర్శకంగా రైతుల విషయంలో కేసీఆర్ గారి పాలన ఉంది. ప్రపంచంలో ఎక్కడ కూడా రైతులకు నగదు బదిలీ పథకం లేదు. దాన్ని మొట్టమొదలు అందించింది బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం. బీఆర్ఎస్ను చూసినాకనే కేంద్ర ప్రభుత్వం పిఎం కిసాన్ పెట్టింది. బీఆర్ఎస్ను చూసినాకనే అనేక రాష్ట్రాల్లో రైతు బంధు పథకం వచ్చింది. రైతు బంధు అయినా రైతు బీమా అయినా దానికి ఛాంపియన్ బీఆర్ఎస్ పార్టీ కేసీఆర్ గారు. అదేవిధంగా నీటి తీరువా లేని రాష్ట్రం, కరెంటు బిల్లు లేని రాష్ట్రం, 24 గంటల నాణ్యమైన బిల్లు లేని ఉచిత కరెంట్ ఇచ్చిన ఒకే ఒక్క రాష్ట్రం తెలంగాణ రాష్ట్రం. అది చెరువుల కిందైనా కాలువల కిందైనా నీటి తీరువా లేకుండా ఉచితంగా సాగునీరు అందించిన రాష్ట్రం కూడా అది బీఆర్ఎస్, అది కేసీఆర్ గారు. ఈ రకంగా రైతులకు అద్భుతమైన పాలన బీఆర్ఎస్ అందించింది. అందుకని నాకు ఉన్న సమాచారం ఏ ఊర్లో కూడా బండ్లు సరిపోతలేవు. నేను వస్తూ ఉంటే మెదక్ జిల్లా పాపన్నపేట నుంచి రైతులు మాట్లాడిండ్రు, సార్ ఒకటే బస్సు పెట్టిండ్రు మా ఊర్లో, ఇంకా బస్సులు కావాలి అంటే బస్సులు దొరకలేవు అంటే లారెండా పెట్టి సార్ మేము వస్తాం మీటింగ్కు అంటున్నారు. అది ఇవాళ ప్రజల్లో ఉన్నటువంటి ఆదరణ. भारत राष्ट्र समिति बीआरएस की सिल्वर जुबली के खुशी व मसरत में मुनक़िद शुदनी अज़ीमुश्शान और तारीख़ी जलसे-आम की तैयारियां बाम उरूज पर हैं। इस सिलसिले में आज रुकन खानसाज कौंसल बीआरएस के कविता ने हैदराबाद में अपनी क़यामगाह से 25 एम्बेसडर कारों में मुश्तमिल काफ़िले को झंडी दिखाकर ज़िले वरंगल के एलकातर्ती को रवाना किया। ये 25 कारें बीआरएस की 25 साला जद्दोजहद, फतूहात और अवामी खिदमात के तारीख़ी सफ़र की नुमाइंदगी करती हैं। काफ़िले की रवानगी के मौके पर कविता ने बीआरएस लीडर रवि यादव की इख्तिराई अनोखी और बामाने पहल पर उन्हें दिली मुबारकबाद पेश की और शुक्रिया अदा किया। बीआरएस को सिल्वर जुबली का मरकज़ी जश्न 27 अप्रैल इतवार को एलकातर्ती में मुनक़िद होगा। पार्टी के सरबराह और साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखरराव का वलवला अंगेज़ और तारीख़ी खिताब होगा। గులాబీల జెండా బట్టి మల్లేశో గుండె కత్తుకొని రార మల్లేశ ఓరుగల్లు మహాసభకు మల్లేశో అరే ఊరు వాడ కదిలే పోదాం మల్లేశ जलपली म्यूनसिपलिटी के मुख्तलिफ वार्ड्स में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत वार्ड 25 के काउंसलर मीर वजीर अली ने अलीनगर कॉलोनी में 15 लाख रुपए लागती ड्रेनेज लाइन के कामों को मंजूर करवाया। इस काम के मुआयने की गर्ज से चेयरमैन जलपली म्यूनसिपलिटी अब्दुल्ला सादी ने मज़कूरा कॉलोनी का दौरा किया। मुकामी अफराद ने क़ायदीन का खैर मक़दम किया, जबकि इस मौके पर काउंसलर्स सैयद याहिया, सैयद अली हसन शाह के अलावा दीगर भी मौजूद थे। आज यहाँ पर हमारे अलहाज बारिश साहब की हिदायत पर और हमारे मिर्ची रहमत बेग साहब की नुमाइंदगी पर यहाँ पर हमारे अली नगर जो पिछले 20-25 बरस से यहाँ पर कुछ काम नहीं हुआ था, ड्रेनेज का मसला था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पानी की लाइन भी लाए इधर। अब ड्रेनेज का भी थोड़ा मसला, काम रुक गया था, पैसे आने के बाद भी कैंसिल हो गए थे। फिर नया बजट लेकर यहाँ पर 15 लाख की लागत से यहाँ पर ड्रेनेज लाइन डाली गई, जिसमें हमारे पूरे यहाँ के मुकामी लोग हमारे साथ थे और नुमाइंदगी करे। हमारे वार्ड नंबर काउंसलर असद भाई भी हमारे से नुमाइंदगी करे। बार बार नुमाइंदगी करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये 15 लाख की लागत से ये काम पूरा मुकम्मल हुआ है। काम शुरू हुआ है, इंशाल्लाह जल्द से जल्द मुकम्मल भी हो जाएगा। और बकाया जो यहाँ के मुकामी लोगों की प्रॉब्लम है कि और बाजुक भी गली में एक्सटेंड करने का बोल रहे हैं कि इंशाल्लाह वो भी करेंगे, करा के देंगे। इंशाल्लाह हमारा काम ही है काम करा के देना। इंशाल्लाह हम काम करा कर ही इंशाल्लाह काम में वो करेंगे।
रच्चागुंडा पुलिस कमिश्नर जी सुधीर बाबू के हाथों महेश्वरम पुलिस डिवीजन में सीसीटीवी कैमरास प्रोजेक्ट का इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस प्रोजेक्ट के तहत 855 सीसीटीवी कैमरास नस्ब किए गए हैं। बालापुर में वाक़ एक फंक्शन हॉल में इस प्रोजेक्ट का आगाज किया गया। ఈరోజు మేడం గారు చెప్పినట్టు సీసీ గారి ఆశయం ఏదైతే ఉందో ఒకసారి చూడండి ఈ కెమెరాలన్నీ కూడా లైన్ ఒక గ్రూప్ కూడా ఉంటుంది. 155 सीसी कैमरास को इनाग्रेट किया। ये ऑनलाइन पूरा कमांड कंट्रोल कनेक्टेड रहने में अच्छा तरीका से प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, डिटेक्शन ऑफ क्राइम और प्रिवेंशन डिटेक्शन होने के बाद हम बेटर वे से ये कन्विक्शन ले आ सकता हूँ हम लोग पूरा काम करके। अब देखिए रिसेंट टाइम में एक जर्मन गर्ल इधर आया, वो टूरिज्म पर्पस के लिए, उनको ऊपर कुछ मिसबिहेवियर किया हम लोग। So one person, so we could get that accused quickly, we could arrest that person and अच्छा तरीका से इन्वेस्टिगेशन भी हुआ और कन्विक्शन जल्दी लाने के लिए हम पूरा कोशिश कर रहे हैं। ये पूरा हमको मेन मदद सीसी कैमरा से मिला और एक मर्डर केस में, रोड एक्शन केस में और चोरी केस में और वुमेन सेफ्टी में कोई आदमी आके मिसबिहेव करने में वुमेन से भी ये प्रिवेंट हो रहे हैं, वो करने वाला कौन है उसको पकड़ने में हमको मदद हो रहा है। इसी के लिए सीसी कैमरास टेंपल में रखना, प्लेस ऑफ वर्शिप में रखना, पूरा मॉस्क, चर्च एंड टेंपल्स रख के तो वो डीमिस्टिफाई करना। कोई इंसिडेंट होते तो लोग सोचते को कोई आदमी दूसरा रिलीजियस पर्सन आके डैमेज किया बल्कि सोचते। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज नॉट लाइक दैट, 99.9% नॉट लाइक दैट। विद एनिमल्स और समटाइम्स वही अनसाउंड माइंड पर्सन आके कुछ किया, ऐसा इश्यूज पब्लिक कैन नॉट बिलीव इट इफ यू से दैट। But when it is seen on the camera, recorded by CC camera, they'll have a authenticity of that information. They'll have a lot of trust in that. That's the reason to maintain good law and order. अभी ये एरिया में हमको फ्यूचर सिटी आ रहा है। जब अच्छा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होता है तो फ्यूचर सिटी में लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट आके हमारे एरिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होते हैं, हैदराबाद ब्रांड इमेज और बढ़ जाती है। इसी के लिए हम ये पूरा कोशिश कर रहे हैं। नंबर ऑफ सीसी कैमरा ज़्यादा होना, अभी 855 सीसी कैमरा रख दिया इधर। सो इन डेज टू कम वी विल हैव मोर सीसी कैमरास। थैंक यू। सुलेमान नगर गाजीनगर नगर में एक शख्स ने पेट्रोल छिड़क कर स्कूटर को आग लगा दी। पुलिस के मुताबिक अब्दुल खदीर नामी शख्स ने अपने ब्रादर निस्बती फारूक की गाड़ी को आग की नज़र कर दिया। मियाँ बीवी में झगड़े के बाद बरहमी के आलम में यह वाक़या पेश आया। इस सिलसिले में अत्तापुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई। पूरा रोड पे तो मारा तो मैं भाई को बोले तो लाए तो उससे बात हुआ तो दिन में रख लेके इन लोगों को मारने का ढूंढ लेते थे। अब्दुल खदीर मेरा शौहर है। 3 दिन पहले मेरे को मारम तोड़ी करा तो मेरे भाई आके बात करे तो मेरे भाई को 3 घंटे से ढूंढ लेते फिरा, उन्हें नहीं मिला तो घर के बाहर उसकी गाड़ी रखी हुई थी तो गाड़ी जला के चले गया। नाज़रीन, इस अहम खबर के साथ दीगर खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे सना अहमद के साथ। तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर व बीआरएस लीडर हरीश राव ने पार्टी के चलो वरंगल रैली के लिए गाड़ियों के काफिले को रवाना किया। रैली के लिए गैर मामूली तैयारियां की गई हैं।
तेलंगाना की वजीर कुंडा सुरेखा ने बताया कि भारत समिट 2025 में माहौलियत पर काबू पाने से मुतालिक मुबाहिस को तरजीह दी जाएगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि मुस्तकबिल की नस्लों को माहौलियाती नुकसानात से बचाना हमारी जिम्मेदारी है। शजरकारी के लिए नौजवानों को तरगीब देना भी हमारी जिम्मेदारी है। उनका ये भी कहना था कि राहुल गांधी की हिदायत के मुताबिक काम किया जाएगा। करना क्लाइमेट चेंज करने के लिए, और ये पहले बार कांग्रेस पार्टी ने नेहरू जी से टाइम से ये समिट हो रहा, तब से भी चल रहा, और आगे बढ़ाने के लिए राहुल गांधी जी भी ये समिट इधर तेलंगाना में रखा, और आने वाले दिनों में क्लाइमेट को कंट्रोल करने के लिए और अच्छा नेचर लाने के लिए क्या करना, ये हमारा सवाल है पहले, क्योंकि पूरा इंडस्ट्रीज और ये पूरा आके तो हमारा क्लाइमेट तो पूरा खराब हो गए, और हम खाने वाले खाने भी नेचुरल वो नहीं है, और पूरा पेस्टिसाइड से आ रहे, और हमारा हेल्थ भी अच्छा नहीं रहे हो। मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा शादी मुबारक के चेक्स की तकसीम जारी है। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने 40 मुस्तहिक लड़कियों के सरपरस्तों में चेक्स तकसीम किए। इन चेक्स की जुमला मालियत 40,46,040 रुपये बताई गई है। इस्तेफादा कुनिंदगान का ताल्लुक रोजलैंड कॉलोनी, सईदाबाद कॉलोनी, सपोटा बाग, मूसाराम बाग, गड्डी अनारम से बताया गया है। इस्तेफादा कुनिंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और रुकन असम्बली अहमद बलाला से इजहार तशक्कुर किया। तस्लीम परवीन, मोहम्मद समीना, नूर जहां, अनीस फातिमा, अफरोज बेगम, फातिमा बेगम, तौफीक बेगम, नौशीन बेगम, सानिया सुल्ताना, ज़किया बेगम, ताहिरा बेगम, बुशरा बेगम, सुरैया बेगम, सुरैया जमीन, असरात तबरी, अहमदी बेगम, नुसरत आरा, राबिया। शहर के नवाही इलाके हयात नगर के टोंटलुरु रवि नारायण रेड्डी नगर में लगी आग ने 30 से ज़्यादा झोपड़ियों को खाकिस्तर कर दिया। आग लगने के दौरान सिलेंडर भी फट पड़े, अफरा तफरी का माहौल देखा गया। मुतासरीन की चीखों पुकार की आवाज़ें भी सुनी गईं। इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड मुकाम वाक़या पर पहुंचा। अभी तक जानी नुकसानात को लेकर कोई इत्तला नहीं मिली है। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। हैदराबाद पेद्दा अंबरपेट आउटर रिंग रोड पर ऑयल टैंकर में आग लगने का वाक़या पेश आया। हफ्ते की सुबह के औकात में ये वाक़या पेश आया। आग लगने से ऑयल टैंकर को गैर मामूली नुकसान हुआ है, लेकिन किसी भी तरह के जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है।
आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। हैदराबाद में भारत समिट का एहतमाम, कांग्रेस कायद राहुल गांधी की शिरकत। इतवार को वरंगल में मुनक्किद होने वाले बीआरएस की सिल्वर जुबली के इंतजामात मुकम्मल, एमएलसी के कविता ने कारों के काफिले को दिखाई झंडी। मजलिस अराकीन असम्बली मुतालिका हल्कों में अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ। महेश्वरम डिवीजन में सीसीटीवी प्रोजेक्ट का आगाज, कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा ने किया इफ्तिताह। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्ताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।